Good morning, church. Welcome to our online service. We hope and pray that this service will be a meaningful one for you. Please do join us in the live chat and let us know your prayer request. We would love to pray with you. So, church, I know we are all excited to worship the Lord. I believe our pastor has a special word for each of us. Let us enjoy the worship. Over to the worship team as they lead us into a time of praise and worship. Let us pray. Gracious Heavenly Father, we thank you for this wonderful day that you have given in our lives. So God, as we come to praise and magnify your holy name, we need your presence. We need your, Lord, touch upon our lives this morning. Help each and every one of us to worship you and to be immersed in your presence, O God, in this day. Lead us and guide us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let us sing this song, Blessed Assurance. आइए हम इस गीत को हम गाएंगे, Blessed Assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my side. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story. This is my soul, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my soul, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at plan. I and my Savior, I'm happy and blessed, watching and waiting, looking about, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my soul, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my soul, praising my Savior all the day long. Blessed assurance, Jesus is mine. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit,
washed in His blood. This is my story. This is my soul, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my soul, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my soul, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my soul, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. We need to praise God continuously. The word of the Lord says, "Come unto me, all who are heavily laden, I will give you rest." प्रभु कहता है, बोझ से दबा हुआ लोग मेरे पास आए, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु के अंदर हमारा विश्राम है। हमारा विश्राम हम प्रभु में पा सकते हैं। इस गीत को हम गाएंगे। बोझ से दबा हुआ था मैं, मुश्किलों से जूझता हुआ, कुछ भी ना अब लग रहा आसान, चुनौतियों से मैं घिरा हुआ। आंधियाँ ये कह रही है मुझे, रखवाला तेरा अब है कहाँ। इस गीत को हम मिलकर गाएंगे। बोझ से दबा हुआ था मैं, मुश्किलों से जूझता हुआ, कुछ भी ना अब लग रहा आसान, चुनौतियों से मैं गिरा हुआ। बोझ से दबा हुआ था, बोझ से दबा हुआ था मैं, मुश्किलों से जूझता हुआ, कुछ भी ना अब लग रहा आसान, चुनौतियों से मैं गिरा हुआ। और वो दिया ये कह रही मुझे, रखवाला तेरा अब है कहाँ। मौत की इन वादियों में से बेझिझक में चलता जा रहा,
यीशु तूने मेरी प्रार्थना सुनी। अंधेरों में, लाचारी में, इस जीवन को नई दिशा मिली। मेरी मुश्किल में, मेरी चिंता में, यीशु तूने मेरी प्रार्थना सुनी। अंधेरों में, लाचारी में, इस जीवन को एक नई दिशा मिली। ना छोड़ेगा, ना छोड़ा है, ना छोड़ेगा कभी। ये वादा तूने मुझसे है किया। इन वादियों से कह रहा हूँ मैं, मेरे रखवाले ने मुझको थाम लिया। मिलकर हाथ उठाते हुए गाएंगे हालेलुया 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 मेरी चिंता में यीशु तूने मेरी प्रार्थना सुनी। अंधेरों में, लाचारी में, इस जीवन को एक नई दिशा मिली। मेरी मुश्किल में, मेरी चिंता में, यीशु तूने मेरी प्रार्थना सुनी। अंधेरों में, लाचारी में, इस जीवन को एक नई दिशा मिली। ना छोड़ा है, ना छोड़ेगा कभी। ये वादा तूने मुझसे है किया। Yes, Lord. इन वादियों से कह रहा हूँ मैं, मेरे रखवाले ने मुझको थाम लिया। Father, as we worship you in this morning, Lord, I pray as we go through different valleys and mountains, Lord, you are there.
you will give us a new path, a new revelation, and you will renew us, and you will make us like you, Lord. Yes, Lord. Because in the midst of all the shadows of death and sorrows and undetermined, unpredictable situation, you will never leave us, Lord. आपने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा. आपके अनुग्रह हमारे साथ बने रह सके, और आगे के समय को तेरे हाथ में सौंप दे. अनुग्रह और बरकत आपसे चाहते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन. आइए हम भजन संहिता पढ़ेंगे. भजन संहिता 121 आप मेरे साथ निकालिए. साम चैप्टर 121 हम एक साथ मिलकर हम पढ़ेंगे. मैं अपने आँखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है. वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा. सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा. यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है. ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी. यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा. यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा. यहाँ पर सचमुच में भजनकार हमें उत्साहित करता है और परमेश्वर के वायदा इन वचनों के ऊपर है. सचमुच में प्रियो, हम अपनी आँखों को उस महान परमेश्वर की ओर लगाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारी सहायता, हमारी मदद करने वाले परमेश्वर. हमें किसी प्रकार के संकट और किसी प्रकार की विपत्ति से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है. परमेश्वर का वायदा है कि वह हमारे आने और हमारे जाने में परमेश्वर हमारे प्राण की रक्षा करेगा, हमारी रक्षा करेगा. वो हमारी रक्षक है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ में, इसलिए हमें कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है. सचमुच में हम अपनी आंखों को इस मुश्किल के दिनों में, इस मुश्किल स्थिति में हम अपने परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को निरंतर हम लगाए रहें, उसकी हम बाट जोहते रहें और उसकी ओर हम देखते रहें. परमेश्वर सचमुच में इस वचन के द्वारा हम सबके जीवनों को आशीष कर सके. आमीन. God is in our midst. परमेश्वर हमारे मध्य में है. He is pleased with our praises and our worship. वो हमारी स्तुति और आराधना से प्रसन्न होता है. He has come to bless us this morning. आज की सुबह वो हमें आशीष करने के लिए आया है. Are you fearful? क्या आप भयभीत हैं? Are you discouraged in your life? क्या आप अपने जीवन में निराश में हैं? Are you going through the fear in your life? क्या आप अपने जीवन में भय में होके जा रहे हैं? God has not given to us the spirit of fear. परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी. I want to encourage you this morning. मैं आज की सुबह आपको उत्साहित करना What चाहती the हूँ. Lord tells to us this morning. परमेश्वर हमसे आज की सुबह क्या कहता है? Isaiah chapter 41 verses 10 says, यशायाह 41वां अध्याय 10वां वचन इस प्रकार से कहता है. Fear not, for I am with you. मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ. Be not dismayed, for I am your God. इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ. I will strengthen you. Yes, I will help you. मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा. I will uphold you with my right hand. मैं अपने धर्ममय हाथ से तुझे संभाले रखूंगा. God wants to assure us that He is with us. He wants to help us. परमेश्वर यह बताना चाहता है कि वो हमारे साथ है और वो हमारी मदद He करता है. tells, don't be dismayed nor fear. वह कहता है कि इधर उधर मत ताक और I भयभीत ना am हो. with you. मैं तेरे साथ हूँ. Are you fearful about your future? क्या आप भयभीत है अपने भविष्य के बारे में? Are you fearful because of the future of your children? क्या आप अपने बच्चों के विषय में भयभीत है? Are you fearful of the virus that is going around? क्या आप उस वायरस से भयभीत है जो हमारे आसपास God है? wants to reassure us this morning परमेश्वर आज की सुबह हमें फिर से निश्चय दिलाना चाहता that है He is with us. कि वह हमारे साथ है. Psalmist says in Psalms 91 verses 5, भजन संहिता 91 उसके 5वें वचन में इस प्रकार से कहता है You shall not be afraid of the terror by night, कि तू न रात के भय से डरेगा और nor arrow that flies by the day. न उस तीर से जो दिन में उड़ता है. Because God is with us, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, we will not fear. हम भयभीत नहीं होंगे. Verses 10 says, 10वां वचन इस प्रकार से कहता है No evil shall befall you, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पे न पड़ेगी, nor shall any plague come near your dwelling. न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा. So you and I don't have to fear, तो आपको और हमें जरूरत नहीं है भयभीत होने की, because our God is with us to help us. क्योंकि हमारा परमेश्वर मदद करने के लिए हमारे साथ है. Our God will deliver us from all the fears of this world हमारा this morning. परमेश्वर इस संसार के हर एक भय से हमें छुड़ाएगा. So get
relieved from every fear this morning. तो आज की सुबह हर एक भय से आप छुटकारा पाइए। It is time to give unto the Lord. यह परमेश्वर को देने का समय है। We all know the story of 2 fishes and 5 loaves. हम सभी 2 मछलियों और 5 रोटियों की उस कहानी को जानते हैं। When the people were tired, they want to go back to home. जब लोग थके हुए थे वो वापस घर जाना चाहते थे। But Jesus told his disciples to give something to eat. पर यीशु अपने चेलों से कहते हैं कि इन्हें कुछ खाने को दिया जाए। There was nothing but 5 loaves and 2 fishes. वहाँ पे 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ के कुछ भी नहीं था। And Jesus told, bring them here to me. और यीशु कहते हैं उन्हें यहाँ मेरे पास लेके आओ। The word of God says, परमेश्वर का वचन when कहता they है brought to Jesus, जब वह यीशु के पास लेके आए, Jesus blessed it. यीशु ने उसे आशीष किया, They all ate, उन सभी ने खाया, were filled. वह तृप्त हुए There was remaining. और वहाँ बच भी गया था। When we bring our offerings to God, जब अपनी भेंट को परमेश्वर के सम्मुख लेके आते हैं, God Himself takes those things in His hand. परमेश्वर स्वयं उन चीजों को अपने हाथों में लेता He है, accepts our offerings वह हमारी भेंटों को स्वीकार करता and है He blesses it, और वह उसे आशीष करता है and there will be remaining blessings. और वहाँ बची हुई आशीषें भी You will रहेंगी। be filled this morning. अब आज की सुबह तृप्त रहेंगी, Your barns will be filled. आपके भंडार जो है वो Your भरे रहेंगे, accounts will be filled. आपके खाते भरे रहेंगे, Every provision of your house will be blessed. आपके घर का हर एक चीज वह भरा हुआ रहेगा। May the Lord bless you as you give unto the Lord. क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष करे जैसे आप उसे देते हैं। Let us pray. आइए हम प्रार्थना Gracious करें। Heavenly Father, we thank you and we praise you once again. स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। We pray for the people who are going through fear in their lives, O God. हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो भय में होकर अपने जीवन में जा Lord, रहे हैं। you said, fear not, I am with क्योंकि you. आपने कहा मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ Let your presence lead them and guide them. क्योंकि आपकी उपस्थिति उनकी अगुवाई करे। Let every fear of evil and death go away from their lives, O क्योंकि दुष्ट God. और मृत्यु का हर एक भय उनके जीवन से चले जाए। We also pray for the people whoever has given unto you. हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आपको दिया है। Bless their offerings, O God. उनकी भेंट को आशीष करें As they gave to you, Lord, जैसे वो आपको देते हैं प्रभु, let them be filled and let them be blessed in their lives. क्योंकि वो भरे रहे और अपने जीवन में आशीष पाए। Thank you for answering our prayers. हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देने के लिए In धन्यवाद। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते Amen. We will go into the Word of God in this morning. हम आज की सुबह परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। It's a pleasure to hear from God's Word and to meditate on God's Word. परमेश्वर के वचन को सुनना और उसके वचन में मनन करना सच में एक सुख की बात है। God's Word gives us strength and renews our life. परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य देता है और हमारे जीवन को नया करता है। I would request you to open your Bible wherever you are and let us together hear from God's Word. मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जहां कहीं अपनी बाइबल को खोलें और आइए एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को सुनें। Today my sermon is the blind see. आज का संदेश है अंधे देखते हैं। It is blessed that our eyes can see what the Lord shows in our life. यह एक धन्य बात है कि हम उसे देख सके जो परमेश्वर हमारे जीवन में दिखाना चाहता है। Many times our eyes are closed and we try to see the things and we cannot see in our life. कई बार हमारी आंखें बंद रहती हैं और हम उन चीजों को देखने की कोशिश करते हैं पर हम नहीं देख पाते हैं। But it's blessed to see and to be blessed in our life. पर ये धन्य बात है देखना और हमारे जीवन में यह एक धन्य बात है। We will read from Isaiah chapter 35 verses 5. हम यशायाह उसके 35वां अध्याय 5वें वचन से पढ़ेंगे। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी तथा बहरों के कान भी खोले जाएंगे। The eyes of the blind shall be opened. अंधों की आंखें खोली जाएगी। Matthew chapter 11 verses 5 we will read. मत्ती 11वां अध्याय 5वां वचन हम पढ़ेंगे कि अंधे दृष्टि पाते, लंगड़े चलते, कोढ़ी शुद्ध किए जाते, बहरे सुनते, मुर्दे जिलाए जाते और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। The blind see. Here we can read. यहाँ पढ़ सकते हैं कि अंधे देखते हैं। And Matthew chapter 13 verses 16 we will read. और मत्ती 13वां अध्याय 16वां वचन हम पढ़ेंगे।
पर धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वे देखते हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। Blessed are your eyes because they see. धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वे देखती है। These are the words of Jesus, who is the Word of God. यह यीशु का वचन है जो परमेश्वर के वचन के रूप में है। Today we are living in the digital world where the people understand by seeing things. आज के समय हम ऐसे उपकरणों से भरी हुई एक डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं जहां लोग देखने के द्वारा ज्यादा समझ जाते हैं। The capacity of studying and hearing has reduced, and the people can understand more by their seeing. उनके पढ़ने और सुनने की क्षमता जो है वह कम हो गई और लोग जो है देखने के द्वारा वह ज्यादा समझ जाते हैं। Naturally, people can understand more by seeing. स्वाभाविक रूप से लोग देखने के द्वारा ज्यादा समझ जाते हैं। We know that our eyes are windows so that we can receive things in our life. हम जानते हैं कि हमारी आंखें खिड़कियों के समान हैं ताकि हम चीजों को अपने जीवन में ले सके। Three things I just want to mention in this morning. इन बातों को मैं आज की सुबह अंकित करना चाहूंगा। You can note it down. आप इन्हें अंकित कर सकते हैं। What do you see in your life? आप अपने जीवन में क्या देखते हैं? What do you want to seek and search in your life? आप अपने जीवन में क्या ढूंढना या खोजना चाहते हैं? Have you submitted your life? क्या अपने जीवन को आपने अधीन किया है? Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Let's close our eyes. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। Ask the Holy Spirit to speak into our hearts. पवित्र आत्मा से मांगेंगे कि वो हमारे हृदय में बात करे। Open your hearts to the Lord अपने हृदय को परमेश्वर के लिए आप खोलें। and tell to Him, Lord, speak to Him. Speak to me, Lord. आप परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आप मुझसे बातें करें। I am your servant. I just want to hear from you, मैं आपका Lord. दास हूँ, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ प्रभु। Heavenly Father, we come in your presence in this morning. स्वर्गीय पिता, आज की सुबह हम आपकी उपस्थिति में आते We हैं। ask you to take your place in this morning. हम आपसे मांगते हैं कि आप अपने स्थान को आज की सुबह ले लीजिए। As we come in your holy presence, जैसे हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आए हैं, we know that you are here to speak and minister unto us. हम जानते हैं कि आप हमारे मध्य में हैं और हमारे बीच में आप कार्य करने वाले Open हैं। our eyes of understanding so that we can listen from you, Lord. हमारी समझ की आंखों को खोल दीजिए प्रभु ताकि हम आपसे सुनने पाए। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, we ask you to touch our life, our very life. हम आपसे मांगते हैं कि आप हमारे जीवन को छू लीजिए। We give you glory and honor. हम आदर और महिमा आपको In देते हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। One more time, let me say, what do you see in your life? एक और बार फिर से मैं कहूंगा कि आप अपने जीवन में क्या देखते हैं? What is your search and what are you seeking in your आपके life? जीवन की खोज क्या है? Have you submitted your life? क्या अपने जीवन को आपने अधीन किया है? The firstly, let us go into the first point. पहली चीज, हम पहले बिंदु को हम देखेंगे। What do you see in your life? आप अपने जीवन में क्या देखते हैं? In the Bible, we can see the life starts with the story of Adam and Eve. बाइबल में हम देख सकते हैं कि जीवन जो है आदम और हव्वा की कहानी से वह शुरू होता है। There was a fruit given which God told not to take that fruit, and the day that they eat the fruit, they will die. वहाँ एक फल था जिसे परमेश्वर ने कहा था कि इस फल को तुम्हें नहीं खाना है, जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम मर जाओगे। And Eve sees that fruit. और हव्वा उस फल को देखती है। Satan comes there, शैतान वहाँ पे आता है and Eve commits her life into the temptation and disobeys the Lord. और हव्वा जो है अपने जीवन को अनाज्ञाकारिता के लिए वह समर्पित कर देती है और परमेश्वर को अनाज्ञाकारी The करती है। Bible says in 1 Timothy chapter 2 verses 14, बाइबल पहले तिमोथी उसके दूसरे अध्याय 14वें वचन में कहती है, Adam was not deceived, but Eve was deceived. क्योंकि आदम को भड़काया नहीं गया परंतु हव्वा जो है वह भड़काई गई। Eve was deceived. She fell into that temptation of seeing the wrong things in her life. हव्वा वहां पे बहकाई गई और उस परीक्षा में गिरी अपने जीवन में बुरी चीजों को देखने के कारण। I'm not telling that you close your eyes and walk in this world. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी आंखें बंद कर दीजिए और इस संसार में चलिए, But there are things that we should ignore and go forward with the things that God tells us to see in our life. पर ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना और देखना है कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। Let me tell, when we go into the shopping mall मैं से बताना चाहूंगा, जब हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं and there is great of
temptation that you wanted to buy things which is not at all essential. और वहाँ पे एक काफी बड़ी परीक्षा रहती है कि आप उन चीजों को भी खरीदना चाहते हैं जो आपके जीवन में जरूरी नहीं है। Many times in the counter they put many things. कई बार काउंटर में ही वो बहुत सी चीजों को रख देते हैं। And we go with the shopping list, but we come home with buying things which is not at all necessary. और हम अपनी शॉपिंग के लिए एक सूची बना के जाते हैं और उन चीजों को लेके आ जाते हैं जो जरूरी नहीं है। Because these business people, they know how to attract our eyes. क्योंकि ये व्यापार करने वाले लोग जानते हैं कि हमारी आंखों को कैसे आकर्षित करना है। Because they know if I attract these people with their eyes, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आंखों के द्वारा मैंने इन लोगों को आकर्षित कर लिया, so that they will get the things which I want to give, which they want to give in their life. तो वो उन चीजों को ले लेंगे जिन्हें वह चाहते हैं कि वह खरीदे। If you go to the shopping mall, अगर आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, take the list, उस सूची को लीजिए, buy the things that is necessary, और उन चीजों को खरीदिए जो जरूरी है। especially when you are going into the counter. विशेषकर जब आप काउंटर के सामने जा रहे हैं, Don't see all these things. इन सभी चीजों को आप मत देखिए। In the counter especially, विशेषकर काउंटर में, in big shopping malls you can see बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल्स में आप देख सकते so हैं, much of sweets or will be there. बहुत सारी मिठाइयाँ वहाँ पे होंगी, So much of ladies stuff will be there. बहुत सारी महिलाओं के सामान वहाँ पे होंगे, So much of things which look so attractive will be there. बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो बहुत ही आकर्षण करती है। But परंतु you have to know what is your focus in your life. आपको जानना है कि किस चीज को आपको अपने जीवन में केंद्रित रखना है। The Bible tells about the story of King David. बाइबल राजा दाऊद की कहानी के विषय में बताती है। It is the time that the kings go for war. वो ऐसा समय था जब दाऊद राजा युद्ध के लिए जाता है। That the kings go for war, all the kings go for war. हर एक राजा युद्ध के लिए जाते हैं। But David was in the house sleeping even in the daytime. पर दाऊद दिन के समय में भी अपने घर में सो रहा है। And he gets up in the evening, और वह शाम को उठता है, goes to the window and see. खिड़की में जाता है और देखता है, And there was a married woman was taking bath, and David fell into the temptation. और वहाँ पे एक वैवाहिक महिला होती है जो नहा रही होती है, और दाऊद उस परीक्षा में पड़ता है। And we can see about how David, a man of God, fell into the wrong things just by seeing the wrong things in his life. और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दाऊद जो कि परमेश्वर का जन है, कैसे वो अपनी आंखों के कारण, देखने के कारण वह परीक्षा में गिर जाता है। We may be in the present time, in the passive time of resting. Many people think in their life. हो सकता है कई लोग सोच रहे हैं कि हम अनिश्चित समय में है कि हम आराम कर सकते हैं। But this is the time we have to be watchful and to make our spirit active and to go and get the things, the blessing of the Lord. और ये एक ऐसा समय है कि हम उठे, प्रार्थना करें और अपनी आत्मा को तैयार करें और परमेश्वर की आशीषों को पाएं। Tell to the people who is nearby, अपने नजदीकी लोग से आप कहें, it's time to be active. यह सक्रिय होने का समय है। This is the time I should be frisky. यह समय है कि मुझे जागरूक रहना है। I will be active. I will not be passive in my life. मैं कार्य करूंगा, मैं बिना कार्य करे नहीं रहूंगा। Jesus told to Peter, यीशु पतरस से कहते हैं, watch and pray so that you will not enter into the temptation. जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। And in that very time he was tired and he went to sleep. और उस समय में वह थक गया था और सो जाता है। Jesus comes again यीशु वापस आते हैं, and Jesus tells to Peter, यीशु पतरस से कहते हैं, will you not even watch for 1 क्या तू hour? एक घड़ी भी मेरे साथ नहीं जागेगा? According to Jesus, the minimum time of prayer is at least 1 hour. यीशु के अनुसार प्रार्थना का कम से कम समय है 1 घंटा। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता if you हूँ, want to pray every day, यदि आप हर दिन प्रार्थना करना चाहते at हैं, least 1 hour, spend time in the presence of the Lord, कम से कम 1 घंटा परमेश्वर की उपस्थिति so में that बिताइए, we will be away from the temptation that Satan comes to tempt our eyes. ताकि हम उन परीक्षाओं से दूर रहे जिसे शैतान हमारे सम्मुख लेके आता है। He will come and tempt your physical life. वो आएगा और आपके शारीरिक जीवन को वो परीक्षा में He will डालेगा। put us into sinful activities in our mind. वो हमारे मन में पाप से भरी हुई उन कार्यों को वो बताएगा। Be watchful and praying so that we are away from the temptation of the enemy. जागरूक रहे और प्रार्थना करते रहे ताकि हम शत्रु की इन परीक्षाओं से दूर रहे। Peter failed in that watchfulness in his eyes. पतरस उस समय में जागरूक रहने, अपने आंखों के कारण वह उसमें गिर जाता है। Many of you know the story that he went and denied Jesus for 3 कई लोग times. इस कहानी को जानते हैं कि वो जाता है और 3 बार यीशु का इनकार करता है। Matthew chapter 13 verses 25 it says like this. मत्ती 13वां अध्याय 25वां वचन इस प्रकार से कहता है, When everyone was sleeping, जब हर एक जन सो रहे थे, the enemy came and put evil
seeds in the ground. शत्रु आता है और वहां पे बुरे बीज, जंगली बीज बो के वो चले जाता है। But it's time that we should be watchful and we should know what we have to see in our life. और यह समय है कि हमें जागरूक रहना और जानना है कि हमें अपने जीवन में क्या देखना है। As I said, these eyes are the windows. जैसे मैंने कहा, ये आंखें खिड़की के समान है। It will make the things to go inside our life. यह उन चीजों को अंदर जाने के योग्य वह बना देती है। Jesus told it's not what you eat, यीशु नहीं कहते कि ये इससे मतलब नहीं कि आप क्या खाते हो, but we should be very careful what we receive inside because those things comes out in our life. अरे बहुत ही गंभीर रहना है कि हम अपने जीवन में आंखों के द्वारा क्या अंदर लेते हैं, क्योंकि वही बाहर आएगी। Abraham was a man of faith, the Bible says. बाइबल बताती है कि अब्राहम विश्वास का जन था। He believed God and it was accounted for righteousness. वो परमेश्वर पे विश्वास करता है और वह उसके लिए धार्मिकता गिना The जाता है। Bible says against hope he began to believe in the Lord. बाइबल बताते हैं कि आशा से परे उसने परमेश्वर पे विश्वास करना शुरू किया। He believed just like what God has said in his life. उसने बिल्कुल वैसे ही विश्वास किया जैसा परमेश्वर ने उसके जीवन में कहा। Even though it took time in his life, भले इस चीज को होने में उसने समय लिया, God always takes us into the process of building our faith. और परमेश्वर हमेशा हमें एक ऐसी प्रक्रिया में लेके जाते हैं कि हमारा विश्वास बढ़े। But when we allow ourselves to see as the Lord tells, और जब हम अपने आप को अनुमति देते हैं कि हम वैसा देखें जैसा परमेश्वर कहता है, God will make our faith to be successful in your life. परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे विश्वास को सफल बनाएगा। He began to see, Abraham began to see as the Lord told. अब्राहम उन चीजों को देखने लगता है जो परमेश्वर उससे कहता है। He could not have just one child he was not having. केवल एक बच्चा भी उसके पास नहीं था। But when he went out and saw the और stars, जब वो बाहर जाता है और तारों को देखता है, he remembered what God said. वो उसे याद करता है जो परमेश्वर ने कहा था, And he began to see by that eyes. और उन आंखों के द्वारा वो उसे देखने लगता है। Oh, my generation will become like the stars of the heavens. कि मेरी पीढ़ी तो इन आकाश में तारों के समान हो जाएगी। Even he saw the sands in the desert land. जब वो रेगिस्तान के स्थान में उन रेत को देखता है, He began to see what God said. वो देखने लगता है जो परमेश्वर ने कहा था। My generation, मेरी पीढ़ी they will be like this sign, all the sands in multitude. वो इन रेत के समान बहुतायत में बढ़ेगी। I will encourage you, what you see, it's a matter of blessing in your life. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, यह मायने रखता है आपके जीवन में आशीष के लिए कि आप क्या देखते हैं। Don't see all these evil things and corrupt your life and miss the blessing which God has in your life. सभी बुरी चीजों को देख के आप अपने जीवन को खराब मत कर दीजिए और उस आशीष से आप वंचित ना हो जाए जो परमेश्वर ने रखी है। There is a difference between seeing and seeking. यहाँ पे देखना और खोजने के विषय में एक अंतर यहाँ पे है। When you see, you just see it. जब आप देखते हैं आप केवल देख रहे हैं, But when you search and seek it, you are in a deep seeking the things. और जब आप ढूंढ रहे हैं, आप खोज रहे हैं, आप गहराई में उस चीज में हैं। I'm going to come into the second point. दूसरे बिंदु को मैं बताना चाहता हूँ What do you seek in your life? कि आप अपने जीवन में क्या ढूंढ रहे हैं। What is your search in your आपके life? जीवन में आपकी खोज क्या है। Again, I want to tell some three things in this as sub points. इस बात में मैं तीन बातों को और बताना चाहूंगा। Matthew chapter 6, let's read verses 32 and verses 33. मत्ती 6वां अध्याय 32वें और 33वें वचन को आइए हम पढ़ें। क्योंकि गैर यहूदी उत्सुकता से उन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहे, तो ये सब वस्तु तुम्हें दे दी जाएंगी। Many times our search is for foodie and fancy things. कई बार हमारी खोज जो है वह अच्छी और मनोहर चीजों में रहती है। But the Bible says all these things the worldly people they search and they want to have and they desire for all these things. और बाइबल बताती है कि इन सब चीजों की खोज और इच्छा जो है वो संसारिक लोग रखते हैं। But the Bible says the heavenly Father knows that you need all these things. बाइबल बताती है कि स्वर्गीय पिता जानता है कि आपको ये सब चाहिए। We have a Father. हमारे पास एक पिता है। If you ask for the fish, He will not give the serpent. अगर आप मछली के लिए मांगे वो आपको बिच्छू नहीं देगा। If you ask for the bread, He will not give the stone. अगर आप रोटी के लिए मांगेंगे वो आपको पत्थर नहीं देगा। Always in the Bible, God hears more than prayers. बाइबल में हमेशा परमेश्वर
परमेश्वर ने प्रार्थना से ज्यादा उसने सुना है। The Father knows what He wants to give to His children. परमेश्वर जानता है कि उसके बच्चों को क्या देना है। If you just think about as an earthly father, अगर आप केवल सांसारिक पिता के रूप में आप do you सोचें, not know that your children needs clothes and water? क्या आप नहीं जानते कि आपके बच्चों को कपड़ा और पानी चाहिए? Do you think that you will leave them just like without food and without clothes? क्या आप सोचते हैं कि बिना भोजन और बिना कपड़ों के आप उन्हें यूं ही छोड़ देंगे? Just think about this thing. इस बारे में आप सोचिए। But in our mind we are focused upon this food and water and fancy and all other things. हमारे मन में हम भोजन और इन कपड़ों और इन सभी मनोहर चीजों के विषय में हम सोचते हैं। But God will fulfill the desires of your heart, I want to say. मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। What the Bible says? बाइबल क्या बताती Seek है? ye first the kingdom of God. पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करें। If you seek Him, अगर आप उसे खोजते हैं, if you come into the deep search, I want to find you, Lord. अगर आप एक गहरी खोज में आते हैं कि परमेश्वर मैं आपको ढूंढना चाहता हूँ, Just like Jacob, if you tell to the Lord, याकूब के समान अगर आप परमेश्वर से कहें, Lord, I will not leave you unless you bless me. परमेश्वर मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे आशीष ना What is दें। the blessing? वो आशीष क्या है? Having the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त Even in करना। the last week we heard पिछले सप्ताह भी हमने सुना, the Holy Spirit knowing Him opens the blessing in our life. पवित्र आत्मा जानता है और हमारे जीवन में आशीषों को खोलता है। If you're not heard it, just go to the last week's sermon and hear how the Holy Spirit can change the wasteland into every waters in your life. अगर आपने उसे नहीं सुना है तो आप जाइए और पिछले सप्ताह के संदेश को सुनिए कि कैसे पवित्र आत्मा मरुभूमि के स्थान को जल के स्थान में बदलता है। In Psalms chapter 24 verses 6, let's read भजन it. संहिता 44वां अध्याय उसके 6वें वचन को आइए हम देखें। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, हाँ, जो तेरे दर्शन की खोजी हैं, अर्थात याकूब वंशी हैं। The generation of Jacob, they seek the face of God. याकूब वंशी जो है, याकूब के वंश ने जो है परमेश्वर के चेहरे को उसने खोजा। Not only Jacob, केवल याकूब ने नहीं, but the generation of Jacob, पर याकूब के वंश ने, the whole Israel. पूरे इस्राएल ने। Many people are alone and alone, lonely. They search for the Lord. लोग अकेले ही परमेश्वर को खोज रहे हैं, But here it's a family. पर यहाँ पे एक परिवार It's है, a generation. ये एक पीढ़ी है। What they want? वो क्या चाहते हैं? Lord, I want to see your face. परमेश्वर मैं आपके चेहरे को देखना If चाहता you हूँ। just see the face of the Lord, अगर आप केवल परमेश्वर के चेहरे को देखें, your life will be filled with multitude of blessing, and the blessing gets opened in your life. आपका जीवन बहुतायत की आशीष से भर जाएगा और आशीष आपके जीवन में In खुल जाएगी। Psalms 27 verses 8, again the same thing is mentioned. Let's read also. भजन संगीता 27वां अध्याय 8वां वचन, वही चीज वहां पे आइए इसे हम एक और बार फिर से पढ़ें। जब तूने कहा मेरे दर्शन का खोजी हो, तो मेरे हृदय ने मुझसे कहा, हे यहोवा, मैं तेरे दर्शन का खोजी होऊंगा। It is the Lord is telling, यह प्रभु है जो कह रहा है seek my face. कि मेरे चेहरे को खोजो, Seek my face. कि मेरे चेहरे को खोजो। Our Father is telling, हमारा परमेश्वर कह रहा है, Jesus is telling, हमारा पिता और यीशु कह रहा है come to कि me. मेरे पास आओ, Seek my face. मेरे चेहरे को खोजो, See my face. मेरे चेहरे को देखो। And here David says, और यहाँ पे दाऊद कहता है, Lord, I will search your face. परमेश्वर में आपके चेहरे की खोज में लगा रहे। There is the fullness of joy, and God fills you with blessings when you come to the presence of यहाँ पे God. एक आनंद की बहुतायत है, परमेश्वर आपको आशीष से भरते हैं जब आप उसकी उपस्थिति में If आते you हैं। read chapter 24 and 25, यदि आप 24 और 25वें अध्याय को आप पढ़ें, when you come and seek the face of the Lord, जब आप आते हैं परमेश्वर के चेहरे को खोजते हैं, it means that you spend time in the presence of the Lord. इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं। Just for knowledge, let me tell. केवल ज्ञान के लिए मैं आपको बताना What चाहूंगा happens क्या होता है when you spend time and seeking the face of the जब आप Lord? समय बिताते हैं परमेश्वर के चेहरे को खोजने में। The King of Glory comes inside. महिमा का राजा अंदर आता है। The second thing, दूसरी चीज, you become conquerors and you will never be ashamed in your life. आप विजय हासिल करेंगे और अपने जीवन में आप कभी शर्म का सामना नहीं करेंगे। What is this searching and seeking? खोजना और ढूंढना क्या है? You don't seek unconsciously but
unconsciously we come to the presence of the Lord. आप यूं ही बिना समझे उसे नहीं खोजते हैं, पर आप उसे समझते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में आप आते हैं। Consciously coming to the presence of the Lord. विवेक के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आना। What happens क्या होता है when you spend time in the presence? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते The हैं, very presence comes as a light in your life, परमेश्वर की उपस्थिति ज्योति के समान आपके जीवन में आती है, and God Himself creates the character like Jesus in your life. और परमेश्वर स्वयं यीशु के समान एक चरित्र आपके जीवन में वह बनाता है। Another thing I want to speak about this searching and seeking. दूसरी बात में एक और बात मैं इस खोजने और ढूंढने के विषय में बताना चाहूंगा। Matthew chapter 7 verses 7 and 8. मत्ती 7वां अध्याय 7वां और 8वां वचन। Maybe you all know these simple verses, हो सकता है इन सभी साधारण वचनों को आप सभी जानते हो, but I will ask you to hear it properly पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसे आप अच्छी तरह सुनिए, so that the Lord will speak to us. ताकि परमेश्वर हमसे बातें We करें। will read. हम इसे पढ़ेंगे। मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि प्रत्येक जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। It says, seek and you will ये find. कहता है ढूंढो तो तुम पाओगे, He who seeks will find. वो जो ढूंढता है वह पाएगा। Everyone who seeks, Jesus himself tells, will find. यीशु खुद कहता है कि हर एक जन जो ढूंढेगा वह उसे पाएगा। Here in this chapter, यहाँ पे इस अध्याय में Jesus is telling about seeing and seeking and searching the things which you have lost. यीशु यहाँ पे उन बातों को जिन्हें आपने खो दिया है खोजने और उनको खोजने के विषय में यीशु यहाँ पे कह रहे हैं। If you search, यदि आप खोजते हैं, when you lose something, जब आपने कुछ खो दिया है, you search in the place where you have lost. आप उस स्थान में उसे ढूंढते हैं जहाँ पे आपने खोया है। Where you have lost the things, you go there and search in your life. जहाँ पे आपने उन चीजों को खोया है, आप वहाँ जाते हैं उसे ढूंढते हैं। For example, उदाहरण के लिए, you have lost the thing in your house, आपने चीजों को अपने घर में खो दिया है, and you have not visited any other family, any other house, और आप किसी और घर या किसी और जगह में आप नहीं गए, but you are lost in that day. पर आपने उसी दिन उसे खोया। But many times what we do, पर कई बार हम क्या करते हैं, we go and search in another house. हम जाते हैं और दूसरे घर में उसे ढूंढते हैं। We have to search in the place where you lost in your life. हमें उसे उसी जगह में ढूंढना है जहाँ आपने उसे खोया है। Revelation chapter 2 verses 4 and 5 it says, प्रकाशित वाक्य की दूसरा अध्याय 4 और 5 वचन इस प्रकार से कहता है, you have lost your first love. तुमने उस पहले प्रेम को तुमने खो दिया है। Many people have lost their love in their family. कई सारे लोगों ने अपने परिवार में उस प्रेम को खो दिया है। You have to look into your heart. आपको अपने हृदय में देखना है, If I have lost my love in my अगर family, मैंने परिवार के लिए अपने प्रेम को खो दिया है, if you have lost it, अगर आपने उसे खो दिया है, you have to search it आपको ढूंढना है and regain that love in your life. और दोबारा उस प्रेम को अपने जीवन में आपने पाना Very है। simple, the Bible says. बाइबल बताती है यह बहुत ही साधारण है। If you have lost the love, अगर आपने प्रेम खो दिया है, the Bible says, Jesus tells, बाइबल बताती है, यीशु यहाँ पे कहते हैं, do the first works which you did for the love. वही उसी पहले कार्य को करें जो आपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए किया था। If you do it, अगर आप उसे करते हैं, you will regain that love. आप उस प्रेम को वापस पा लेंगे। For example, I will tell, उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा, there is a boy and girl who have loved one another. एक लड़का और लड़की यहाँ पे जिन्होंने एक दूसरे से प्रेम किया, They began to write letters वह चिट्ठियां लिखने लगे, and they exchange gifts, वह उपहारों को एक दूसरे को देने लगे, and that attracted the girl. और उसने लड़की को जो है आकर्षित किया। After they married, they forget everything. कुछ समय के बाद उन्होंने विवाह किया और सब बातों को वो भूल गए। And this boy tells, और यह लड़का कहता है, I am your gift. मैं ही तुम्हारा उपहार Why हूँ। you need gift? तुम्हें उपहार की क्या I जरूरत am है? your only gift. मैं ही तुम्हारा इकलौता I उपहार will हूँ। not write even SMS. मैं एक मैसेज भी नहीं लिखूंगा, I will not WhatsApp you. मैं व्हाट्सएप व्यूज को भी नहीं दूंगा। This husband has gone for 1 week. यह लड़का जो है, पति जो है, एक हफ्ते के लिए दूर चले जाता है, He even doesn't phone also. वो उसे कॉल भी नहीं करता है। Oh, I am your gift. वो कहता है, मैं ही तुम्हारा उपहार हूँ। Love will be lost. प्यार जो है वो खो The जाएगा। same thing happens with the Lord. ऐसा ही परमेश्वर के साथ भी होता If है। you do the things which
you did first for the love. यदि आप प्रेम के लिए उन बातों को करते हैं जो आपने पहले करी, When you came to the Lord first, जब आप पहले परमेश्वर के you पास were आए, praying, आपने प्रार्थना you were की, reading the आप word, वचन को पढ़ते you हैं, were आप fasting, उपवास करते you हैं, spent prayer and prayer in the whole night. आप प्रार्थना और पूरी रात प्रार्थना में बिताते Today, हैं। if the love is lost, आज यदि प्रेम खो गया है, just renew it. उसे नया कर If लीजिए। the love is lost in your family, अगर प्रेम आपके परिवार में खो गया है, what is the thing you know in your life? आप जानते हैं वह क्या चीज है, Renew the life. उसे नया कर लीजिए, Renew the love. उस प्रेम को नया कर Ask the लीजिए। Lord, परमेश्वर से Lord, मांगे, put your love in my life. परमेश्वर प्रेम को मेरे जीवन God में will डालिए। renew your family love. परमेश्वर आपके जीवन में पारिवारिक प्रेम को नया कर I देगा। pray that let there be love in your मैं family. प्रार्थना करता हूँ कि प्रेम आपके परिवार में बना रहे। In this time that you stay in the family one to another, इस समय में जब आप परिवार में एक दूसरे के साथ रहते हैं, let God's love descend. क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उतर आए, Let your love increase every day in your life. क्योंकि हर दिन आपके जीवन में प्रेम बढ़े, Let the lost love, let it be renewed in your life. क्योंकि वो खोया हुआ प्रेम आपके जीवन में नया हो जाए। In John chapter 4, यूहन्ना 4 अध्याय verses 23 and verses 24, 23वां और 24वां वचन, Jesus tells like this. यीशु इस प्रकार से कहते हैं, Father is seeking for those who worship Him in spirit and in truth. कि पिता उन लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई में उसके लिए आराधना कर रहे हैं। Which means whether the Father need all this honor and glory and everything. इसका क्या अर्थ है कि परमेश्वर को वो सारा आदर, सारी महिमा, ये सब चीजें परमेश्वर को चाहिए। It is the Satan who needs worship. यह शैतान है जिसे आराधना चाहिए। Satan told to Jesus, शैतान यीशु से कहता है, just one time bow. केवल एक बार मेरे I will सामने give झुक जा, everything. मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। But God is not demanding. पर परमेश्वर ऐसी मांग नहीं But करता, He is looking पर वो देख रहे हैं whether these people come to me in search of me. क्या ये लोग मेरे पास ढूंढते हुए आएंगे। In that place, उस जगह में God pours multitude of blessing. परमेश्वर बहुतायत की आशीष को उड़ेल I देगा। want to tell you, मैं आपको बताना चाहूंगा, if you take one step to the Lord, यदि आप परमेश्वर की ओर एक कदम को लेते हैं, one step forward to the Father, एक कदम परमेश्वर पिता की ओर, God will open multitude of doors in your life. परमेश्वर बहुतायत की आशीषों को आपके जीवन में उन दरवाजों को खोल देगा। The third thing I want to tell, तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा, submitting to the Lord. परमेश्वर के अधीन हो जाना। Let us read James chapter 4 verses 7. आइए हम याकूब 4 अध्याय 7वां वचन हम पढ़ेंगे। Let us all look and into the word of God by ourselves. आइए हम सब बाइबल में अपने आप बाइबल की ओर हम देखें। James 4 and verses 7. याकूब 4 अध्याय 7वां वचन, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। Submit to God, resist the devil, he will flee from you. परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वह आपसे भाग जाएगा। Many times what we do, कई बार हम क्या करते हैं, we tell, हम कहते हैं, hey Satan, leave, leave, leave. ए शैतान तू चला जा, चला जा, You चला जा, cannot be there. तू यहाँ नहीं रह सकता। You Satan, leave. ओ शैतान तू चला जा। But we have not submitted to the पर Lord. हमने परमेश्वर के अधीन नहीं किया है। When we have meditated the first through two things, जब हम पहली दो बातों को मनन कर रहे थे, what do you seek in your आप life? अपने जीवन में क्या ढूंढ रहे हैं? Our Father knows what you want in your life. हमारा पिता जानता है हमें क्या चाहिए अपने If जीवन you में। come to the presence of the Lord, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, He will open the blessings and doors which He has prepared. वह उन आशीष और दरवाजों को जिन्हें उसने तैयार किया है खोल देगा। But you also have to submit your life. पर आपको भी परमेश्वर के अधीन होना है। Without submission and you are seeking the Lord, बिना अधीन किए यदि आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, Lord, I just want you, but I will not submit to you. परमेश्वर मैं आपको चाहता हूं पर आपके अधीन मैं नहीं होना चाहता। There, the enemy takes the hold in our वहाँ पे life. शैतान हमारे जीवन में नियंत्रण को ले लेता है। At this time, at this moment of time, उस समय में we need the power of God to resist the enemy. हमें परमेश्वर की सामर्थ चाहिए कि हम शत्रु का जो है उसको हम भगा सके। It's the God's power that we can make a command that any kind of virus and any tormenting things can leave in our life. यह परमेश्वर की सामर्थ है कि हम आज्ञा दे सके हर एक प्रकार का वायरस और हर एक प्रकार की सताने वाली चीज चले जाए। I'm going to read one word and finish. मैं एक वचन को पढ़ के उसे समाप्त करना चाहता First हूँ। John chapter 5 verses 18, very beautiful. पहला यूहन्ना 5 अध्याय 18वां वचन, यह बहुत ही खूबसूरत है। Let's read. आइए हम इसे पढ़ें। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, परंतु वह जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसकी रक्षा करता है और वह दुष्ट से उसे छूने नहीं पाता।
Here it says, यहाँ पे यह कहता है the person who is born of God, कि जो व्यक्ति परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है he doesn't sin वह पाप नहीं करता and he keeps himself. और वो अपने आप को बचाए रखता है, He protects himself. वो अपने आप की सुरक्षा करता है। What the Bible says, बाइबल क्या बताती है? when a person is born of God, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर से उत्पन्न होता है, just like the child is born into the new world, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा इस नए संसार में उत्पन्न होता है, the person has submitted to the Lord. उस व्यक्ति ने परमेश्वर को अपने आप को परमेश्वर के अधीन किया है। Lord, it's a newborn living. कि परमेश्वर एक नया जीवन है, Not my will, मेरी इच्छा नहीं, not my words, मेरे वचन नहीं, not anything of my ways. मेरे मार्ग में से होते हुए I मेरे जीवन का कुछ भी totally नहीं। commit myself to you, Lord. मैं पूरी रीति से अपने आप को आपके अधीन करता When हूँ। you submit like that, जब आप इस प्रकार से अधीनता the लाते हैं, evil one will have no hold, the Bible says. बाइबल बताती है कि दुष्ट का कोई भी नियंत्रण नहीं रहेगा। Let me tell it again, that verse. मैं इस वचन को दोबारा बताना चाहता हूँ। He who is born of God परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, keeps himself, वो अपने आप को बचाता है, and the wicked one, the evil one, cannot touch और it. दुष्ट जो है वो उसे छू नहीं पाएगा। Surely we are living in the evil world. सच में हम एक बुरे संसार में जी रहे हैं। So much of wars, बहुत से युद्ध, so much of evil people, बहुत से बुरे लोग, so much of viruses and bacteria. बहुत से वायरस और संक्रमण। But he who is born of the Lord, वह जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, he searches after the वो Lord. परमेश्वर को ढूंढता है, He seeks God first. वो सबसे पहले परमेश्वर को खोजता है। God becomes the Lord in his life. परमेश्वर उसके जीवन में प्रभुत्व What करता है। happens? क्या होता है? God becomes the Almighty. परमेश्वर उसके जीवन में सर्वव्यापी हो जाते हैं। Just like Psalms 91. बिल्कुल वैसे ही जैसे भजन संहिता 51 कहता He है, dwells under the shadow of the Almighty. वह सर्वशक्तिमान की छाया में वह वास करता है And God protects his life. और परमेश्वर उसके जीवन को सुरक्षित करता This submission will lead you to sanctified life. है। यह अधीनता जो है आपको शुद्धिकरण जीवन में लेके चलेगी You will be sanitized already. और आप हमेशा आप अपने आप साफ हो जाएंगे। When you go out and come in, जब आप बाहर जाते और अंदर आते हैं, the plagues and the pestilence cannot come in your life. वह बीमारी और महामारी आपके जीवन में नहीं आ पाएगी। Surely you protect with all vigilance in your life. सच में आप उन सभी मरियों से आप बचे हैं, But ultimately, पर सबसे when you ऊपर submit to the जब Lord, आप परमेश्वर के in अधीन this बनते morning हैं। I am calling for you and me. आज की सुबह मैं आपको और अपने आप को बुलाता हूँ। If you submit to the Lord, अगर आप परमेश्वर के you अपने can आप को tell to the enemy, आप शत्रु से कह सकते you हैं, devil, आपका शत्रु, I resist you. मैं तुझे डांटता हूँ, You cannot touch my life. तू मेरे जीवन को नहीं छू सकता, You cannot touch my mind. तू मेरे मन को नहीं छू सकता, You cannot touch my तू मेरे family. परिवार को नहीं छू सकता, Because I live under the shadow of the क्योंकि Almighty. मैं सर्वशक्तिमान की छाया में वास कर रहा In हूँ। this morning I just told three things. आज की सुबह मैंने 3 बातों को बताया Let your blind eyes open कि आपकी अंधी आंखें खुल जाए, so that you can see what God has prepared in ताकि your आप उसे life. देख सके जो परमेश्वर ने तैयार किया है। Are you seeing those fruits, क्या आप उन फलों को देख रहे हैं, those unwanted things? उन अनावश्यक चीजों को? The Father knows what to give in your पिता life. जानता है आपको क्या चाहिए। What do you seek and search in your life? आप अपने जीवन में क्या ढूंढ रहे हैं, खोजते हैं, Seek the face of the Lord पर प्रभु के चेहरे को आप ढूंढें and do what He tells you to do. और वह करें जो वो कहता है आपसे करने के Have लिए। you submitted your life to the Lord? क्या आपने परमेश्वर को अपने जीवन को अधीन We किया are है? going to pray. हम प्रार्थना करने वाले हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Everybody, हर एक जन in every place in this morning, इस सुबह के समय हर एक स्थान में commit your life to the Lord. अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित Lord, I am करें। seeing unwanted things. परमेश्वर, मैं अनावश्यक चीजों को देख रहा Through हूँ these eyes, Lord, इन आंखों से। I प्रभु, have sinned in my life. मैंने अपने जीवन में पाप किया I है, have touched which I should never touch in my life. मैंने उन चीजों को छुआ है जो मुझे नहीं छूनी I चाहिए। began to meditate those unwanted things in the past in my मैंने life. पिछले समय में अपने जीवन में अनावश्यक चीजों के विषय में मनन किया है। Definitely your past you cannot change. सच में अपने 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 भूतकाल को आप नहीं बदल सकते But हैं, today, पर आज Jesus is calling you. यीशु आपको बुला रहे He हैं। will change you. वह आपको बदलेगा, He will make you like Him. वह आपको अपने समान बना देगा। He has so much of doors in your life. उसके पास आपके जीवन में You बहुत need से not दरवाजे worry in your life हैं। at आपको all. अपने जीवन में चिंतित होने की Just जरूरत commit नहीं your है। life into the अपने Lord. जीवन को परमेश्वर के अधीन God blesses your life. परमेश्वर आपके जीवन को आशीष I करे। will ask you to open your hearts. मैं आपसे चाहूंगा
चाहूंगा कि आप अपने हृदयों को खोलें। If you want to lift up your hands, अगर आप अपने हाथों को उठाना चाहते Lord, हैं, once again I commit and submit my life. परमेश्वर को और बाप फिर से मैं अपने जीवन को समर्पित और अधीन करता I'm हूँ। going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। महान परमेश्वर, एक एक जन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपकी दया और अनुग्रह से हर एक जीवन को छू ले। हमारे जीवन में प्रभु जी हम उन बातों की ओर खोजते हुए, बढ़ते हुए, तेरा अनुग्रह को प्राप्त करते हुए जा सके। मैं एक एक जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन जो अनदेखी हुई चीज, उन जो प्रभु जी दरवाजे है, उन जो द्वार है जो आपने हमारे लिए रख छोड़ी है, जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, आपने अपने प्रेम करने वालों के लिए रख छोड़ी है। पवित्र आत्मा आपके अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन को प्रभु जी तेरे हाथ में सौंपता है। एक ही जीवन को तेरे उपस्थिति के द्वारा मैं आशीष करता हूँ, उनकी जीवन को छू ले प्रभु जी। जैसे कि वचन में हमने पढ़ा है, जिन्होंने प्रभु जी आपको पाया, अपने जीवन को आपके आधीन में सौंपा है, दुष्ट शक्ति उसको छू नहीं सकेंगे। यदि कोई भय है, डर है अपने जीवन में, शरीर में, मन में, अपने भिन्न भिन्न बातों में प्रभु जी शक है, हम उन बातों को देखना चाहते हैं। आपकी वचन कहते हैं, आपकी दया से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक जीवन को आज का दिन ऐसी वक्त छू ले प्रभु जी, उनका परिवार को छू ले। याकूब की वंश हम बन जाए, ताकि मैं और मेरा पूरा परिवार आपकी खोज में, आपकी उपस्थिति में बढ़ते जा सके। हर एक जीवन को आशीष करता हूं, तेरे लोग और तुझ में बढ़ते जा सके, तेरे नाम की महिमा और बरकत लगातार होकर रह सके। सारा आदर महिमा हम आपको देते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु के अनुग्रह को हम एक साथ बोले। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक होते रहे, आमीन। Thank you for joining us. We speak the blessing of the Lord continually in your life. God bless you in this whole week.